morning all of you. कैसे हैं आप? All are fine? Good. So beta, today we will start with the chapter Goodwill, Nature and its Valuation. Nature of goodwill I have given you to read yourself, and in audio we have clear that what is goodwill. Now we will start the valuation of goodwill. Before we start with the valuation, we must clear about the meaning of goodwill. So, what is goodwill? If we simply ask in the layman language, what is goodwill? It is nothing but it is name and fame and reputation of the business in the market. Quite simple it is. कि what is goodwill? बहुत सिंपल है कि गुडविल क्या है, किसी भी बिजनेस का नाम, उसका फेम होना, उसकी रेपुटेशन, ऑल दैट इज कॉल्ड एज ए गुडविल. बिजनेस चाहे कोई भी हो, बिजनेस में बी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस में बी ऑफ पार्टनरशिप, business may be even the company business, it may be any size, any nature of business. Everywhere the meaning of goodwill will be same. What is that? It is a name and fame of the business concern. In partnership, we will discuss goodwill according to accounting standard 26. Very important. What is accounting standard 26? It is given by whom? Institute of Chartered Accountant of India. We know that normal rules and regulations, accounting standards, everything related to accounting, it is made by whom? By the Institute of Chartered Accountancy of India. Right, beta? So, how we will just calculate goodwill in the partnership firm? This is under section, that is accounting standard 26 will be applied. According to this accounting standard 26, which goodwill is to be valued in partnership firm? That goodwill which is purchased for some consideration. कौन सी गुडविल बेटे? Consideration. Only this goodwill which is paid, which is purchased for something. Consideration may be, it may be cash or it may be kind. That we have discussed. Consideration कोई भी हो सकती है, कैश में भी हम पे कर सकते हैं और हम through check, through bank draft, through bill of exchange, it may be any thing like that. It may be in the form of anything like cash. So cash or kind, it may be the consideration which is used to pay to purchase the goodwill. So that goodwill is to be only recognized under accounting standard 26, which is made by Institute of Chartered Accountancy of India. Clear hai bache? Second goodwill which is there in this chapter, that is self-generated goodwill. This goodwill is purchased, but this goodwill, as very name suggested, self-generated, which is made by efforts of the management, of the employees of the staff, or it may be of partners too. कुछ भी हो सकता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए, कोई भी एफर्ट्स लगाए, खुद गुडविल को जनरेट करे, बनाए, कोई पैसा ना दे उसके लिए खरीदने के लिए,
दैट गुडविल इज कॉल्ड एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये कैसे बन सकती है किसी बिजनेस में? मान लो मेरा बिजनेस है, राइट, इट इज एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द मार्केट। मार्केट में बिल्कुल सेंटर प्लेस पे उसकी लोकेशन है, वो लोकेशन अच्छी है, डेफिनेटली आपकी गुडविल बनेगी बनेगी। या फिर आपका आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, राइट, वो भी एक तरीका है आपकी गुडविल जनरेट करने का। बहुत सारे और सोर्सेज भी हैं, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जिससे हम अपने आप अपनी गुडविल को जनरेट कर सकते हैं। By the services, by the quality, by the efforts, by the human relationship, all that will create goodwill, and that goodwill is self-generated but not the purchase goodwill. So this type of goodwill is not to be accounted in partnership firm under accounting standard 26. Which goodwill will be shown under accounting standard 26? That is only purchase for consideration. राइट बेटा? तो कंसिडरेशन में भी इन कैश और इट में भी इन काइंड। सो दिस थिंग शुड बी क्लियर। तो हम आज करेंगे परचेज गुडविल कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। बिफोर दैट वी शुड गो थ्रू द वेरियस फीचर्स वंस अगेन। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, सो एक बार फिर से हम रिकैप करेंगे इसका। गुडविल, इफ वी टॉक अबाउट इट, व्हाट इज गुडविल? तो बहुत सिंपल सा है। Goodwill is an intangible asset. Intangible means no physical substance, non-monetary value. Clear? तो वो गुडविल जिसकी हम बुक्स में शो करते हैं, ये एक तरह का हमारा इंटेंजिबल एसेट है जिसकी कोई भी मॉनेटरी वैल्यू अगर हम देखा जाए नहीं है, राइट, और इसकी कोई फिजिकल शेप नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सो दिस गुडविल इज कॉल्ड एज ए नॉन मॉनेटरी एसेट, राइट बेटा? सेकेंड, goodwill, it is amortized. Amortize means it is write off when the value decreases. That term is called as a amortization. ये हमने पहले भी किया था कि goodwill intangible asset and it should be amortized, not it should be depreciated, not separated from the business. इसका मतलब if the business is there, only then the goodwill is there. If there is no business, there will be no goodwill. So we cannot make goodwill separate from the business. Its existence only when there is a business. तो ये साथ में ही रहता है, गुडविल बिजनेस का ही हिस्सा है, और बिजनेस अगर है तो गुडविल भी आपकी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। आपकी बुक्स में पॉइंट गिवन है, आप इसको पढ़े इस तरह से। So what is the purpose of goodwill? It increases the profits of the business. जितनी ज्यादा अच्छी गुडविल होगी बच्चे किसी बिजनेस की, उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी सेल्स होगी, उतनी ज्यादा टर्नओवर होने से उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है दैट विल आल्सो बी इंक्रीजेस। तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है व्हेन देयर इज अ गुडविल ऑफ द बिजनेस एग्जिस्ट, राइट? Likewise, we have another point. It is an attractive force.
which attract customers. So what is goodwill? Goodwill एक ऐसा फोर्स है जब हम उसको लगाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कस्टमर आता है, राइट बेटा? तो जितनी ज्यादा गुडविल होगी, गुडविल कैसे बनाएंगे वो आपको पता ही है कि गुडविल हम अच्छे से अच्छे अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे, गुड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर के साथ डीलिंग अच्छी करेंगे, जितने भी कस्टमर आपके पास आते हैं उनके साथ कोड ऑफ कंडक्ट आप यूज करेंगे, सो दैट वे ऑल दिस विल एंड attractive force which will be used and the customer will be yours for permanent. तो ये कस्टमर आपका परमानेंट कस्टमर बन जाता है। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। गुडविल को अगर हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं, राइट? जैसे मैंने आपसे बात की कि लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर अच्छी लोकेशन है तो डेफिनेटली गुडविल अच्छी ही होगी। अच्छा, आपकी एक्सेसिबल सप्लाईज हैं, अगर आपको रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हो, अगर वो आपको अच्छी टाइम पे या उसकी सप्लाई रेगुलर हो रही है, रीजनेबल रेट्स पे हो रहे हैं, वो आप इजीली ले सकते हो, so that also attract your customer or it will brings the goodwill in the business. So there are so many points which is given there in the book also. You can go through yourself that what is goodwill. It is all combination of these points is called as a goodwill. Now next we will discuss it is about need for valuing goodwill. Do you feel there is need to calculate goodwill in the partnership form? बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ती है। आपकी बुक में 6 पॉइंट्स गिवन है। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चे? Whenever there is change in existing profit sharing ratio of the partners, कि जब भी एग्जिस्टिंग रेशियो में कुछ चेंज आता है ड्यू टू एनी रीजन, राइट, देयर विल बी रिक्वायरमेंट नीड टू कैलकुलेट द गुडविल. सेकेंड, न्यू पार्टनर एडमिटेड. Whenever there is any partner admitted in the partnership firm with the mutual consent, definitely there will be need to calculate the goodwill. कारण क्या बेटे? क्योंकि ऑलरेडी नए पार्टनर के ज्वाइन करने से पहले the partners they have already put the best efforts. They are earning something in the business, जिसमें नए पार्टनर का कोई से नहीं है. But as he is going to join the firm with the capital investment without any efforts yet he has put in, so definitely the old partners, existing partners, they are sacrificing some part of their profits in the favor of a new partner. तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का जो सेक्रीफाइस है उसके कारण हम क्या करेंगे बेटे? वो उसका शेयर ही न्यू पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के फॉर्म में दिया जा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? फिर से गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि उसको कितना शेयर दे रहे हैं और उसमें से कितनी गुडविल जो है उन्होंने सेक्रीफाइस की इन दी फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयर. इज इट क्लियर? थर्ड वी हैव रिटायरमेंट and death of any partner. In the partnership firm, it may be that partner retire from the partnership firm. एक टाइम पीरियड होता है, हमने पार्टनरशिप की टाइप्स पढ़ी है +1 में, तो उसमें बहुत सारा नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं कि अगर पार्टनर की रिटायरमेंट होती है एट दैट वेरी मोमेंट अगेन जाता हुआ पार्टनर जो है कुछ सेक्रीफाइस जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, दैट विल बी गिविंग समथिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप. Obviously again there is need to calculate the goodwill. क्लियर बच्चे?
और जो पार्टनर जा रहा है डेफिनेटली वो अपना शेयर जो है ओल्ड पार्टनर्स को दे रहा है, तो उससे उनको गेन हो रहा है. एट दैट वेरी मोमेंट आल्सो देयर इज नीड टू कैलकुलेट द गुडविल. Likewise, in case of death, there is need of calculating the goodwill. Then we have another point. When partnership firm is sold, as a going concern, कोई पार्टनरशिप फर्म जब सेल होती है, चलती हुई बिक जाती है, at that very moment we need to calculate goodwill so that we can evaluate the realizable market value of the or saleable value of the partnership firm. Then we have another point, when two or more in case of amalgamation. What is amalgamation? Although it is not in your syllabus, but still you should know what is actually it means. Amalgamation means when one firm merge in other firm. एक छोटी फर्म बड़ी फर्म में merge हो जाती, मिल जाती है, एक बन जाती है, that is called as a amalgamation. At that very moment there is need to calculate the goodwill too. And finally we have when the partnership firm converts into company. फर्म को हमने कंपनी में कन्वर्ट किया, उस मोमेंट पे भी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? देयर इज नीड टू कैलकुलेट द गुडविल. So this is all about the nature and features we have discussed. Need, where we are requiring the valuation of goodwill. Now we have already discussed that there are two types of goodwill. One is purchase goodwill and other one is self-generated goodwill. So out of that we will start with the first one, purchase goodwill. As per accounting standard 26, only purchase goodwill is recognized. And to be shown in the partnership firm books. सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया, कोई कंसिडरेशन नहीं थी, खुद से बनाई गई, इसलिए वो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते. लेकिन जो गुडविल को परचेज किया गया कुछ पे करके, चाहे वो कैश पेमेंट है चाहे इन काइंड है, दैट गुडविल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड मस्ट बी शोन इन द पार्टनरशिप बुक्स. सो हाउ वी विल जस्ट कैलकुलेट परचेज गुडविल, हम इसका एक एग्जांपल लेंगे which is given in your book only. So I am going to start with the very first example on page 3.4. Illustration first. We have given statement, Amrit daily needs acquire the business of Shri Shivam. अब इसमें परचेज गुडविल में क्या आएगा बच्चे? One will be the purchaser, that is the buyer. और दूसरा कौन होगा? Seller, that is called as a vendor, जो बिजनेस बेच रहा है. तो बायर डेफिनेटली वेंडर का बिजनेस परचेज करेगा. बिजनेस परचेज में हो सकता है वो डायरेक्टली बिजनेस को परचेज करे कुछ अमाउंट के अगेंस्ट. ये भी हो सकता है कि सम ऑफ द एसेट्स में भी टेकन ओवर, सम ऑफ द लायबिलिटीज में भी टेकन ओवर. डिफरेंस जो है वो आपका परचेज कंसिडरेशन की फॉर्म में आ जाता है. सो पार्टी परचेजर विल परचेज द बिजनेस, पार्टी वेंडर विल सेल द बिजनेस. अल्टीमेटली परचेजर को पेमेंट किसको करनी है बच्चे? वेंडर को. सो जस्ट ईच क्वेश्चन विल हैव टू पार्टीज. Amrit daily needs acquire the business. Who is Amrit daily needs? That is the buyer, purchaser. Business of Shri Shivam. Shri Shivam, he is a vendor. For a purchase consideration of rupees 5 lakh. What is the amount of purchase consideration given? 5 lakh in the statement. Payable by check. तो पेमेंट कैसे होगी बच्चे? थ्रू चेक. The assets acquired, asset को कुछ acquire किया गया, liabilities को taken over किया गया. So assets and liabilities it is given, pass the necessary journal entries. So when we have to put the journal entry, always we start with the number of assets.
जब भी कोई एसेट होता है वो हम क्या करते हैं, व्हेन इट इज इंक्रीज इट इज ऑलवेज डेबिटेड, सो दैट वे ऑल द एसेट मस्ट बी डेबिटेड, ऑल द लायबिलिटी मस्ट बी क्रेडिटेड, राइट बेटा? सो फर्स्ट एसेट इट इज गिवन फर्नीचर अकाउंट, debited, number 1. Then we have inventory account debited. Then we have debtors account debited. All these are assets. Otherwise, वैसे भी आपको पता ही है. Now some of the liabilities taken over to creditors account, to salaries payable account, to outstanding expenses account. So some of the assets are acquired, some of the liabilities are taken over. Difference of these two amounts लिखते हैं, वो क्या है? Purchase consideration. 10,000 furniture, 7,50,000 value of inventory, debtors 1,50,000. Then we have creditors, it is 5,20,000. Salaries payable 75 and 15. 15,000 is outstanding expenses. Now what is the first step? Total of debit, total of credit. करें जरा. What it 9,10,000. Total assets 9,10,000. What is the amount of total liabilities? 6,10,000. Now difference of these two, net assets, net worth बोलते हैं इसको. Difference of assets minus liabilities is called as net assets. Difference of assets minus liabilities is called as net worth also. कहीं पे net worth लिखा होता है, कहीं पे net assets लिखा होता है. तो 9,10,000 minus 6,10,000 बचे 3 lakh. लिखा जाए तो आपने बिजनेस जो परचेज किया है, it is of rupees 3 lakh. लेकिन हम कितना पे कर रहे हैं शिवम को? 5 लाख रुपीस. 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रही है. कौन पे कर रही है? परचेजर. ठीक है, क्यों कर रही है? क्योंकि उन्होंने रनिंग बिजनेस टेक ओवर किया शिवम का, और ऑलरेडी शिवम हैज अर्न सम गुडविल इन द बिजनेस, सो वी आर परचेजिंग दैट गुडविल फॉर रुपीस 2 लाख. ओके बेटा, सो यहाँ पे हमने परचेज गुडविल निकाली. 9 10 minus 6 10 3 लाख, 5 लाख minus 3 लाख बेटे 2 लाख. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? गुडविल account debited 2 lakh. This is there, and Mr. Shivam vendor, इसको तो क्रेडिट करना ही करना है, ठीक है ना? कितनी अमाउंट से करना है? Whatever amount is there given as a purchase consideration, which is 5 lakh. So debit must be equal to credit. अगर आप देखेंगे दोनों का टोटल क्या आएगा बच्चे? 11 lakh 10,000. 6 10 plus 5 11 10, 9 10 plus 2 11 10. तो ये 2 लाख जो हमने निकाले, क्या निकाले बच्चे? This is called as a purchased goodwill. Clear? अब हमने बिजनेस को तो परचेज कर लिया, लेकिन वेंडर को पेमेंट करनी है शिवम को, तो शिवम को पेमेंट कर देते हैं. सेकंड एंट्री में क्या करेंगे? वी विल मेक पेमेंट टू शिवम. पेमेंट चाहे कैश में हो, पेमेंट चाहे काइंड मींस कुछ भी, चाहे वो चेक है, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी ओवरड्राफ्ट नहीं, बैंक ड्राफ्ट है, चाहे वो प्रोमिसरी नोट है, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, कुछ भी. सो नेक्स्ट इज मेकिंग पेमेंट टू वेंडर. शिवम अकाउंट डेबिटेड. हमेशा वेंडर के ऑपोजिट क्या आएगा बच्चे? जो आपने फर्स्ट एंट्री में उसके आगे लिखा 5 लाख रुपए, जो भी अमाउंट होगी. हाउ वी आर मेकिंग पेमेंट? थ्रू चेक. वी नेवर राइट चेक, बट वी यूज्ड टू राइट थ्रू बैंक अकाउंट 5 लाख. अगर हम नरेशन देखें तो क्या हुई? बीइंग पेमेंट मेड थ्रू चेक. क्लियर? नरेशन तो आप पता ही है, सिंपल फॉर्म में उसको लिखेंगे.
So this is one question, one example we have discussed about the purchase goodwill. कि goodwill को कैसे हम as per accounting standard 26 शो करेंगे पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में. क्लियर है बच्चे? आप एक बार देख लीजिए जो मैंने किया हुआ है. Now next we will discuss one more example of your book only. There are methods of valuation of goodwill. Methods of valuation of goodwill. We have three methods. One is average profit method. Second, super profit method. Third, capitalization method. Three methods we have. Today we will just do one question from this method, that is average profit may be simple average profit or it may be weighted average profit. Average profit भी दो तरह की, एक तो simple और एक weighted average profit है. So today we will discuss only one, that is average profit method. This we will discuss today with one example from your book only. Before we start with the average profit, we will discuss the various steps to be followed in this method, average profit method. With simple average profit, there are different steps. There are mainly 4 steps. जिसमें आप गुडविल निकालेंगे. तो पहला स्टेप क्या है बच्चे? We want to know the normal business profit. सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? To find out normal business profit. नॉर्मल का मतलब क्या है? क्योंकि हमारा जो गुडविल है, अगर हमने बिजनेस को टेक ओवर किया तो डेफिनेटली जो पास्ट इयर्स का उनका गुडविल था, प्रॉफिट था, उसी को हम अगले कुछ नंबर ऑफ इयर्स के लिए सेम एज्यूम करेंगे कि हमारा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट भी इतना ही होगा. राइट बेटा? सो दैट वे हमने उस प्रॉफिट में हो सकता है कि कोई एबनॉर्मल लॉसेस या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हो, एबनॉर्मल गेन्स हो जो उसमें इंक्लूडेड हो, उनको एडजस्ट करेंगे so as to find out the normal business profit. तो सिंपल से हमारे पास फॉर्मूला है, whatever profit will be given of the past years, उसमें आपको प्लस abnormal losses minus abnormal gains. अब एबनॉर्मल लॉस पता ही आपको कैसे हो सकते हैं बच्चे? जो नॉर्मल नहीं है ना, जो हम कहते हैं कि बिजनेस में नॉर्मली नहीं होते हैं, जैसे कि लॉस बाय फायर है. अब आग डेली थोड़ा लगती है बिजनेस में, है ना? ये नॉर्मल रूटीन थोड़ा ही है. तो इट मे बी देयर, ये नॉर्मल नहीं है. चोरी चकारी हो जाए बिजनेस में किसी फॉर्म में. एबनॉर्मल गेन क्या है? जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिजनेस से लेकिन हो गए हैं. लाइक वी हैव ऑलरेडी गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. Now we know that fixed assets are meant to use but not to sell. So अगर हमें इसका बेच के whatever at the end we used to sell it, तो उसका जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है. दैट इज नॉट ए नॉर्मल गेन, इट इज कॉल्ड एज ए एबनॉर्मल गेन. ठीक है बेटा? तो इस तरीके से, या कोई नॉन रेकरिंग इनकम है कि जो हमारी रेकरिंग नेचर की नहीं है, बार बार नहीं होती है, लेकिन वंस इन ए ब्लू मून इट इज देयर, नॉन रेकरिंग इनकम. तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी बच्चे? दैट विल बी कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन. तो हमने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट करना है. जो पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे उसमें अगर कोई एक्सपेंस लॉसेस या एबनॉर्मल गेन की बात हो रही है, तो दिस वे वी हैव टू एडजस्ट. एबनॉर्मल लॉसेस शुड बी प्लस
एबनॉर्मल गेन शुड बी माइनस। तो करने पे क्या आएगा हमारे पास, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आएगा। सेकेंड स्टेप क्या है बच्चे, दैट इज टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बहुत सिंपल है, आपको पता ही एवरेज कैसे निकालते हैं। उसके लिए टोटल ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। जो हमने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाला उन सब के इयर्स टोटल करना है नंबर ऑफ इयर्स का प्रॉफिट से, और डिवाइड कर देना नंबर ऑफ इयर्स के साथ। हमारे पास क्या आएगा बच्चे, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। थर्ड स्टेप में हमें क्या चाहिए, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इयर्स नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इयर्स वी हैव देयर by which we will just multiply the average profit we have calculated. तो थर्ड स्टेप में हमें नंबर ऑफ इयर्स परचेज ये गिवन होगा आपको स्टेटमेंट में, एंड फोर्थ स्टेप विल बी टू कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, इट इज, हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, पहले हमने लिखना है एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला बच्चे, इनटू नंबर ऑफ, हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्म की गुडविल आ जाएगी। सो वी कैन डिस्कस अगेन, देयर आर 4 स्टेप्स टू फाइंड आउट द सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहला स्टेप है हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए। हो सकता है ऑलरेडी आपको सिंपल प्रॉफिट दिया हो, नॉर्मल दिया हो, लेकिन अगर कुछ एबनॉर्मल चीजें गिवन है तो उसको एडजस्ट बैक करेंगे हम, सो एज टू फाइंड आउट द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने निकालना है बच्चे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने नंबर ऑफ इयर्स का हमारे पास बिजनेस प्रॉफिट है उन सबको एड अप करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड करेंगे, यू विल हैव एवरेज प्रॉफिट। थर्ड स्टेप में हमारे पास नंबर ऑफ इयर्स परचेज स्टेटमेंट में दिया होता है, आप वहां पे निकाल लेंगे। फोर्थ स्टेप में हमने गुडविल निकालनी होती है जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, दैट विल बी मल्टीप्लाइड, सो यू विल फाइंड आउट द गुडविल। क्लियर बच्चे? So I feel following this method it will be easy for you people to solve the questions, right? बहुत ज्यादा नहीं करते। अगर आपको मेथड क्लियर है तो I feel following these method you can calculate, you can solve number of questions given in the exercise. तो प्लीज इस चीज को जो आज हमने डिस्कस की है, गुडविल की थ्योरी, दैट इज नेचर, इसमें आपके फीचर्स आ गए बच्चे, जिसमें आपकी नीड आ जाती है, जिसमें आपके फैक्टर्स आ जाते हैं, वो सारा आप एक बार थ्योरेटिकली आप पढ़ लें, आपने पहले भी पढ़ा होगा। देन वी हैव वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। गुडविल दो तरह की हमने डिस्कस की, एक तो सेल्फ जनरेटेड, दूसरी परचेज। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते बुक्स में, लेकिन जो परचेज गुडविल है जिसको हमने परचेज किया इन दी कंसिडरेशन, चाहे कंसिडरेशन कैश में चाहे वो किसी फॉर्म में है, तो दैट गुडविल इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड शुड बी कैलकुलेटेड वैल्यूड। तो उसको वैल्यू करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। जिस मेथड में हमने सॉरी 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैलकुलेशन। तो वेरी फर्स्ट मेथड जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट है, उसमें भी हमारे सब पार्ट्स हैं। एक पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। टुडे वी हैव डिस्कस ओनली सिंपल एवरेज प्रॉफिट, जिसमें 4 स्टेप्स में हमने मेथड को क्लियर किया कि किस तरीके से हमने गुडविल को फाइंड आउट करना। तो विद दिस आई थिंक you should clear and must solve the different questions given in the exercise related to the simple average profit. Thank you very much, Vijay.